Women lives matter. Especially in the case of emergencies, their life is very important. When we say about emergencies, we talk about the issues to the sexual reproductive health of women in emergencies. It's related to multiple human rights, including the right to life, right to be free from torture, right to health, right to privacy, the right to education, and the right to prohibition of discrimination. And these all can be achieved only through good reproductive health care services, goods and facilities available to them. Yugandhar believes in gender equality and equal justice for all. And of course, the women carry half the sky. But their dreams are deferred, their actions are restricted, their movements are stopped, fettered. मामा तेरे को तो लड़की को कितना पढ़ेगी तो सरकारी पढ़ के सारी चीजें फूकेगी, या लड़का को पढ़ाएंगे तो कुछ कभी काम आगे खिलाएगा लोग, लड़की को नहीं पढ़ाते हैं लोग. So in this situation, we need to all come together, open our hearts, eyes and minds to hear our collective voices. They are collective voices of men, women and all. But the point is that how to make the change. हम लोग पढ़े हैं तो इनको नहीं आएगा तो इनको सिखलाएंगे. घर में जितना सदस्य है उतना लोग को सिखलाएंगे. चाहे साफ सुथरा के करने के बारे में सिखलाएंगे, चाहे हम लोग के बच्चा हो गया है तो साफ सुथरा रहने के लिए सिखलाएंगे. अब ऐसा है पोटा हम सीख दे रहे हैं, चाहे गंदा धो दे रहे हैं या तो हाथ धो के धुलाने के लिए सिखलाएंगे, साफ सुथरा रहने के लिए सिखलाएंगे. हम लोग खान पान में थोड़ा ध्यान देते हैं. मैडम आई तो हम लोग को समझाए. And for this, to bring the change, we have tried to experiment the whole process of bringing gender equality in the case of emergencies, because that is the major point when women lives matter. सब लड़कियां इतना सुविधा दे रही हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में कि लड़की कंधे से कंधे जेंट्स लड़का से कंधे लड़ाती है मिलाकर चल सकती है. मतलब सशक्तिकरण में युगांतर एक गैर सरकारी एनजीओ संस्था है जिसमें इनके द्वारा महिला सशक्तिकरण और उसके स्वास्थ्य पे वर्क किया जा रहा है. और इसके अलावा ये बहुत सारे काम करती हैं, जैसे कि लाइवलीहुड पे काम कर रही हैं और डिजास्टर पे काम कर रही हैं, प्लस उसके बाद वेलफेयर पे काम कर रही हैं. ख़ास तौर से महिलाओं में सशक्तिकरण जागरूकता फैलाएं कि उनको अपने स्वास्थ्य पर कितना ध्यान देना चाहिए. तो ये आपदा से पहले उनको तैयार करते हैं कि कोविड अगर नेक्स्ट वेव अगर कभी आती है तो आप लोगों को किस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए. और मेडिकल कॉलेज में जहाँ मेडिकल हॉस्पिटल में जहाँ पे ऑक्सीजन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग कोरोना काल में देख चुके हैं कि किस हद तक ऑक्सीजन के लोग मर रहे थे. तो इनके द्वारा ये सहयोग जो दिया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है. और ऐसी संस्था के लिए मैं चाहूँगी कि ये अग्रतर होएं और आगे आए और इनको अवसर प्रदान किया जाए, और सरकार की तरफ से हमारी तरफ से भी कि ये और अच्छा कर सके. जहाँ इनको ज़रूरत रहे वहाँ हमेशा इनका हम सहयोग कर सकें. And we here in Yugandhar have identified 6 panchayats in 2 districts of Bihar in the state of India. Yugandhar has, with 30 women welfare forums were formed in the villages, which consist of more than 300 women from ranging from the age of 18 to 45, and they have been coming together and the most potentially transforming forces on the planet. And this is why this seems to be a very small thing that we had 1300 meetings of all the women, primarily maybe on the weekly basis, quarterly basis, but these meetings were a challenge for the established patriarchy in the area. पहले ये सब के बारे में हम लोग का जानकारी नहीं था, नहीं जानते थे. तो जो हो गया वो सब जानकारी नहीं था. अभी जो है अभी जानकारी है. इसका मीटिंग भी कर रहे हैं. पहले तो 2-3 आदमी आते थे पहले, तो मीटिंग हुआ. तो अभी तो मान लीजिए बहुत ही लोग आते हैं. मीटिंग हम लोग करते हैं. अभी जानकारी हुआ है इस सब के बारे में, सब पता हुआ है. तब हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं बहुत अच्छा है. And in this context, I would like to refer about the convergence meeting that we had when the girls from the Gagi girls from the villages of target villages of ours were taken to the Bethia Medical College, and where in front of the medical college students, the principal, the mayor of the state, they performed a skit play on the rights of the girls, the rights to their education, the right about not to get married before 18, or we try to say not only 18 but till they settle down. And
the right to decide whether they want to get married at 18 or beyond that. These are the skit plays that they spoke about. They played in those convergence meetings at the state level, at the district level, and at the panchayat level also. They did all these things. अपने दाहिने जानी पूरी सीट जो है महिला सशक्तिकरण की विचार है। हमारे इस इंस्टीट्यूशन की हेड हमारी मैडम है और राजनीति के नाम पर आवाज मनोबल उठाने वाली हमारी केवल है। बच्चियां पीछे नहीं है। अब ये कह के कोई डराए मत। लहरों पे अपना बिस्तर सजा रही है बेटियां और तूफानों को अपना मशकन बना रही है बेटियां। So gradually, when you see our programs, if you come to our field, you will notice that now it is more women in our programs leading or sharing the dais than the men which we had earlier when we started this program there. So this is a very positive aspect that we have done it. ये जो प्रोग्राम है युगांतर के तहत एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। ये वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाता है। साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है। युगांतर द्वारा जो कार्य किया जा रहा है काफ़ी सराहनीय है। कोविड के समय भी हम लोगों ने देखा और अभी लोग ये काम कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण, उत्थान, महिलाओं को कैसे जागरूक किया जाए, उनका हक अधिकार क्या है उस पर कैसे उनको बात करके उनको दिलाने की प्रयास की जाए, यही आप लोगों का उद्देश्य है। और आज बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज आप लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था। डॉक्टर्स की टीम भी उपस्थित थी और लोग भी जो गणमान्य थे वो लोग भी उपस्थित थे। और मैंने भी देखा बच्चियों ने नुक्कड़ नाटक के ज़रिए जो दिखाया काफ़ी सराहनीय रहा और दूर तक यह मैसेज जाएगी। जो कि हेल्थ का मतलब होता है शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्तर से जो स्वस्थ है, तीनों स्तर से। तब शारीरिक स्तर से जो है हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल टीम, मेडिकल कॉलेज के जितने डॉक्टर्स हैं, पीएचसी के डॉक्टर्स हैं, उनसे हम लोग कन्वर्ज कर सारे गांव के शारीरिक स्वास्थ्य को हम लोग पूर्ण रूप से सुरक्षा करेंगे, स्वस्थ करेंगे। मानसिक और सामाजिक स्तर के लिए हम लोग नुक्कड़ नाटक और इस तरह से कन्वर्जेंस मीटिंग्स करके लड़कियों लोग का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा दे रहे हैं। And so we worked for that along with the women. Groups of adolescent girls, we named them as Gargi Girls Group. They were made to sit together, talk together, know each other in the villages, and then a sort of a Gargi girl group was formed. We call it G3. G3 group was formed of adolescent girls. मीटिंग हुआ था लड़कियों का खाली, तो वहीं पे हम लोग को बताया गया है कि कपड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए, इसमें पैड यूज करना चाहिए। पीरियड के दौरान मेरे पैर में बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द होता था। किसी भी बात पे बहुत गुस्सा आता था, हमेशा चिड़चिड़ापन लगा रहता था, सर में दर्द भी होता रहता था। तो कुछ दिन मतलब ऐसे ही झेले। उसके बाद जब युगांतर संस्था से जुड़े तो हमें इसका सल्यूशन मिला। सरकारी में भी दिखा देते हैं, वो भी किए। महिला वो से भी बहुत खुश है और महिला को बहुत हमसे बहुत उन लोग को जागरूकता हो गया। हम भी जगह जगह पर मीटिंग किए, जागरूकता किए। कुछ लड़की लोग भी बोली है कि आंटी जी आप मीटिंग किए हैं, हम लोग को जो जागरूकता नहीं था वो भी हम लोग को जागरूकता हो गया है। अब हम लोग को तो बहुत ही फ़ायदा हुआ है। जैसे हम लोग को मासिक में बहुत दिक्कत रहता था, ऑनलाइन से दीदी अनीता दीदी से भी बात कराएं और आस्था मैम भी आई थी। कुछ महिला लोग का जो बच्चा नहीं हो रहा था, कुछ महिला लोग का है जो 9 महीना से बच्चा नहीं, 9 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, किसी का 3 साल से नहीं हो रहा है। उन लोग को भी आस्था मैम आई थी, तो मैडम भी बातचीत किए उन लोग से, उन लोग को भी कुछ सलाह दिए हैं, अच्छा ही सलाह दिए हैं।
मझौलिया प्रखंड अंतर्गत अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र लाल सरैया में युगांतर संस्थान के सौजन्य से स्वास्थ्य जांच शिविर एवं दवा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर फैजान शाह के द्वारा लगभग 40 महिलाओं एवं किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में महिला एवं किशोरियों को उनसे संबंधित बीमारियों के साथ साथ स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में आवश्यक टिप्स दिया गया। यहाँ पे युगांतर के द्वारा उन लोगों के द्वारा जो भी महिला सशक्तिकरण के द्वारा जो भी लोग लेडीज़ लोग को यहाँ पे भेजा गया था, तो उन लोगों का सारे लोगों का बीपी शुगर का जांच और उन लोगों का क्या कंप्लेन है, क्या दिक्कत है, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मेडिसिन यहाँ पे दिया गया है। इससे ये बेनिफिट हो रहा है कि यहाँ पे जो लोगों को ज़्यादा दूर स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए जाना नहीं पड़ रहा है, उन लोगों को डोर स्टेप पे ही घर से थोड़ी दूर पे ही यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा मिल जा रही है। एएनएम नीलम कुमारी, महिला उत्प्रेरक संतोषी रानी सहित कई लोगों की सराहनीय भूमिका रही। इन्हें स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस करते हुए यहाँ की सुविधा को बताते हुए डॉक्टर साहब बताए हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आशा क्या कर सकती है और एएनएम क्या कर सकती है। अपने दायित्व के बारे में भी लोगों को जानकारी दी है। साथ ही एक एक करके सभी लोगों के स्वास्थ्य का काउंसलिंग हुआ है। In this group, they will, through various plays and skits, they were made to talk about themselves, the needs, their aspirations, their dreams. They were made to vocalize their dreams, their aspiration. मेरा नाम संचिता कुमारी मजूमदार, अब मैं डांस और सिलाई करना चाहती हूँ। मेरा रुचि सिलाई करना एंड रीडिंग करना। And these girls, more than 150 of them, have regularly getting training on the skit play on the issues relating to their menstrual hygiene, safe sexual practices, on their rights, on their education, on their security, on their safety, on all the various aspects that could lead to make them more powerful, independent, and be able to take their own steps in times of peacetime and as well as in emergencies. They can be part of the early warning systems that are being set up in the area. They can be part of the task force that is there, where they can be the leaders, not only for the women but for the entire community. This is the precise process we have been working in that process, in that area. In this, various IEC materials were also developed. One of the most important being Beti Ki Baat, Beti Ki Saath. That is talking about the girls, about the daughters, with the daughters. And this 4-pager leaflet, an IEC material, was hugely popular among them, and it was discussed among themselves with the help of the WWF communities. उसको समझाने के लिए बेटी की बात बेटी के साथ की पेपर से उसको कुछ लोगों को जानकारियाँ देती हूँ। उसमें महामारी के दौरान वो किस तरह स्थिति से गुजरती है, उस स्थिति को सामना करने के लिए उन लोगों को हौसला बढ़ाती है। Some online training and orientation was given to them through experts, gynecologists from the government hospital in the Bethia region, where we're talking about it in the West Champaran district of Bihar. समस्याओं को सुलझाने के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं वो ग्रामीण औरतों से और आशा वर्कर्स से उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। और हमने कुछ ऐसी काउंसलिंग की है, कुछ महिलाओं की और आशा वर्कर्स की भी, कि कैसे वो समस्याएं अपनी हमारे पास पहुंचा सके। तो बहुत सारी काउंसलिंग में हमें पता चला है कि महिलाएं जो होती है वो बात जो बता नहीं पाती है, धीरे धीरे हमसे बातें करके बहुत खुलती हैं और बताती हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये समस्या कब से चली आ रही है, हमें ये दिक्कत हो रही है, या बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, पेट दर्द की प्रॉब्लम है, या बच्चा होने में कोई समस्याएं हुई, वो सारी बातें वो हमें बता पाती है। तो उससे हम उनको प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, बचने का उपाय बता पाते हैं। और बहुत सारी समस्या ऐसी होती है जो बहुत समय से चली आ रही है, जिसके लिए ऑपरेशन एक इलाज है, और कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो जाके अच्छे अस्पताल में ही कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम उनको काउंसिल करते हैं कि आप वहाँ जाइए, वहाँ डॉक्टर्स को दिखाइए, तो वो आपका फर्दर आगे उपचार कर पाएंगे। तो उससे महिलाएं जो हैं आगे जाकर फिर इससे उनको बहुत फ़ायदा होता है और वो जाती हैं अस्पताल में और उसका उपचार कराती हैं। कंप्यूटर सीखना, पेंटिंग का काम, गाना सीखना, ये सब जानना चाहती हूँ। सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, अच्छा आइडिया दिया। हम लोग
ये काम सीख के आप लोग क्या करेंगे? ब्यूटिशियन का काम सीख कर क्या सोच रहे हैं? अपना देश का विकास करेंगे, मम्मी पापा का सेवा करेंगे, पैसा कमा के। So gradually the women have, the girls have developed themselves. If you look at them 2 years back since we have started this program to now, the girls are now able to articulate more. They are able to speak about themselves in the public sphere, in the public domain, from the stages. They are able to speak about themselves, their rights, their thoughts, their dreams. मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के लालसरिया पंचायत भवन में युगांतर संस्था द्वारा जीवन कौशल क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के दूसरे दिन लोगों को जागरूक करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने बताया कि घर की महिला के बीमार होने पर घर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। ऐसे में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। अधिकतम महिलाओं में खून की कमी की शिकायत मिलती है। इसके लिए उन्हें चुकंदर, अनार जैसे शरीर में रक्त बढ़ाने वाले फल व आहार लेना चाहिए। बांझपन के उपचार के लिए परामर्श, महिला प्रजनन अंगों में कैंसर का पता लगाना, रोकना और प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा परामर्श तथा प्रबंधन आदि विषय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युगांतर संस्था की तरफ से हम लोग नारी स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को लेकर वुमेन्स लाइफ मैटर SRH केयर एंड इमरजेंसी पे हम लोग स्किट थिएटर वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसके थ्रू महिलाओं में प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और सेफ डिलीवरी पे तैयार कर रहे हैं नाटक। और इस विषय पे चाह रहे हैं कि समुदाय में ये नाटक पहुँचे और बहुत संजीदगी के साथ इस विषय को बहुत संभलते हुए समाज तक पहुँचे और समाज इससे कुछ सीखे। I would like to also be thankful to Bihar State Disaster Management Authority, which are developing the policies and guidelines regarding disaster risk reduction in the state. And I am happy to say that they have now set up a women's cell, give advisory support to the Bihar State Disaster Management Authority on the women issues during humanitarian crisis. Saying all this, I would like to add that working on gender equality, especially in the time of emergencies when we say it's not a well appreciated aspect of disaster risk reduction. The people, the donors, the government agencies don't take it on at the priority level. The support that is required by Yugantar at many times is not provided, we are not able to get those, because this is not a priority for many. When we at Yugantar talk about gender equality, it is not the gender equality of an urban empowered woman. It's of a woman in the villages, in the backwaters of the villages, who have not seen development at a major level, where they cannot take any decision about their lives, about their future, about their dreams. The most vulnerable among the vulnerable people. We are thankful to Packard Foundation that they could understand the issues and have been supporting us for a long time on such a left out, under the carpet issue, which is very important for half the population that holds the half the sky of the universe. मैं 2 दिन से यहाँ बेतिया में हूँ और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। युगांतर टीम के साथ सदा बनी हुई हूँ और इनके अथक प्रयास को देख रही हूँ। इस तरह के माहौल और कम्युनिटी वर्क जो ये कर रहे हैं, ये सही में काबिल तारीफ है और देखने लायक है। मैं देख रही हूँ कि अमित चतुर्वेदी जी जो हैं 2 दिन से लगातार लगे हुए हैं, इससे पहले भी लगे हुए हैं, लेकिन मैं 2 दिन से इनको देख रही हूँ कि बच्चों के साथ ये अपना प्रयास दे रहे हैं और बहुत ही मेहनत के साथ जो आज आपके सामने प्रस्तुति हुई है, ये काफ़ी मेहनत का प्रयास है। तो इसको एक बहुत ही बड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए। एक जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। इस तरह की और भी बच्चियाँ आगे आए, भविष्य में और कार्यक्रम हो और अवेयरनेस हो, क्योंकि देखिए कार्यक्रम के द्वारा ही अवेयरनेस होता है। बहुत पढ़ना, बहुत पढ़ाना ये अलग बात है, लेकिन अगर इसका विजुअल एस्पेक्ट होता है, जरा आप इन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आप तक ये बातें ज़्यादा पहुँचती हैं। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते ये कहूँगी कि आप पढ़ाते हैं बिल्कुल सही, लेकिन उसके
चीज़ें आपके प्रस्तुति के द्वारा आनी चाहिए, जिससे कि इस तरह का एक माहौल क्रिएट हो और इन बच्चियों का एक प्रयास और ये कहा जाए कि इन बच्चियों को एक हौसला अफजाई हो, जिससे ये आगे आए और अपने आप को व्यवस्थित करें। धन्यवाद। अपनी समस्या किसके सामने हल कर सकते हैं, कौन आपकी सहायता कर सकता है, उसके लिए ये संस्था आपके सामने आई है। अगर आपकी बच्ची कुछ करना चाहती है, जैसा कि आप सबों ने देखा, इन बच्चियों ने आज एक नुक्कड़ नाटक किया। इन्हीं बच्चियों में से कोई गा रही है, इन्हीं बच्चियों में से कोई आपको अपनी आवाज़ बता रही है, अपनी मन की व्यथा बता रही है। तो आप उन चीज़ों को समझिए। ये कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, किसी के मनोरंजन के लिए नहीं किया जा रहा है, ये जागरूकता के लिए किया जा रहा है। आपकी संवेदनशीलता को संभाला जा रहा है, समेटा जा रहा है। मैं भी 2 बेटी और 1 बेटा का बाप हूँ, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत फक्र हो रहा है कि हमारी बेटियों ने हमारा सर जितना ऊंचा किया है, शायद बेटों ने नहीं किया है। हम बोलेंगे, हम बदलेंगे।